Silence can be a beautiful thing. It helps you introspect and gain perspective, and it gets you through a lot of difficulties. But what if that silence was deafening? What if you could hear screams throughout your sleep and it wouldn't let you sleep at night? But not everyone is silent by choice. There are many voices that are silenced. It is an inescapable hell where memories haunt you and voices scream that will keep you awake at night. God forbid, how would you react if your dearest one hops on a train, waves goodbye at you, and returns home only in ashes? I hope that never happens, but it's happened with these people. You do not have the time to ask questions or to answer them. Ramlala was finally coming back to his home after 500 years of struggle. Reporters were scavenging for any story even remotely related to Ayodhya or the Ram Mandir. But as they say, in power, politics and the press, location is everything. If you're closer to location, then your story is heard. If you're far away from it, then good luck. I was asked to go to Gujarat to talk to the families of these car sevaks. But Gujarat is very far away from Ayodhya, right? Why would anybody go all the way there? Who were these people? What were their stories? What actually happened to them? And in hindsight, that was my first clue. Who are these people and what are their stories? I had to find out. जो राम टेम्पल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय, उनसे मैंने पूछा कि कर सेवा का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कर सेवा सिख ट्रेडिशन से निकला है। कर मतलब हाथ, सेवा मतलब सेवा, जो हाथ से की जाए सेवा वो कर सेवा। उन्होंने मुझे बताया कि जब 90 के आसपास ये सोचा जा रहा था कि उन लोगों को हम क्या नाम देंगे जिनको हम यहाँ पर एक्चुअली फिज़िकल लेबर के लिए बुला रहे हैं। और फिज़िकल लेबर उस वक्त था ईंट लगाने का, क्योंकि जो वीएचपी ने कॉल दिया था वो ये था कि एक ईंट आपकी भी अयोध्या में लगनी चाहिए राम मंदिर के लिए। इस तरीके से कर सेवा शुरू हुई थी। फिर वो पूरी एक मीटिंग हुई थी इसके ऊपर। फिर ये डिसाइड किया गया कि जो सिख ट्रेडिशन में जो शब्द है कर सेवा, जो आपको गुरुद्वारों में जो ट्रेडिशन दिखाई देता है कि लोग करते हैं सेवा, वहाँ से क्यों ना निकाला जाए, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं। इनफैक्ट उस मीटिंग में शायद कोई सिख जेंटलमैन भी मौजूद थे जिन्होंने वो दिया होगा सजेशन, ऐसा चंपत राय जी का कहना था। राम जी के बारे में जो उनका शबरी के साथ में जो उनका कन्वर्जेशन था, यहाँ से अनावल नाम की एक जगह है जहाँ पे शबरी के आश्रम में उन्होंने भोजन लिया था। फिर वहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया था और वहाँ पे कुछ आदिवासी लोगों को, भील लोगों को उन्होंने ब्राह्मण बनाया। यानी कि जब यज्ञ करते हैं तो कुछ ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, सामूहिक होता है। तो उनने कुछ भील लोगों को बुलाया और उनको जनेऊ पहना के उनसे यज्ञ करवाया। तो वो लोग, उस स्थान के लोग, अब वो देसाई जो कम्युनिटी है, अनाविल ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। तो ये गुजरात के साथ उसका कनेक्शन है और वो यहाँ से सूरत से हार्डली 70 किलोमीटर की दूरी पे वो है। On 27th February 2002, a train full of Ram Sevaks were returning from Faizabad to Ahmedabad when this incident took place. 59 Hindu pilgrims were burnt alive on that unfortunate day in Godhra. My first thought was, 2 bogies were burnt down, but there were other bogies full of people. There must have been people who witnessed the whole thing, right? There must have been first-hand accounts. This was my first cue. And this is why I had to go to Gujarat to find out what was happening and to meet those people, perhaps the eyewitnesses and the survivors who had seen first-hand accounts of what happened that day. जी आंटी, सॉरी लेट हो गया, अभी हम 20 मिनट में पहुंच रहे हैं।
मेरा नाम मंदाकिनीबेन भाटिया है। पहले मैं विश्व हिंदू परिषद में थी। जब गोधरा कांड हुआ ना, तब मैं अमराईवाड़ी जिला की प्रमुख थी, संयोजिका थी। मेरा नाम उदयन जगन्नाथ भाई रावल है। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। 2002 में दर्शन के स्वरूप में हम लोग गए थे और वहाँ से हम सभी कार्यकर्ता और दूसरे सब लोग गए और दर्शन करके वापस आ रहे थे। तो रात्रे सांजे 5 वागे ट्रेन આવવાના બદલે રાત્રે 7 વાગે આવી। 2 કલાક ટ્રેન અયોધ્યાથી જ લેટ હતી। એ ટ્રેનમાં અમે બેસી સાબરમતી એક્સપ્રેસ એમાં બેસી અમે આવ્યા અને ત્યાં પસાર થતા લગભગ જે ટાઈમ હતો એ કપાતો ગયો અને અમે જ્યારે ગોધરા પહોંચ્યા તો સવારે 7:55 टाइम હતો। कार्यकर्ता नीचे अपने सुबह का प्रातः कार्य करने के लिए, कोई ब्रश करने के लिए, मुँह धोने के लिए, चाय पीने के लिए नीचे उतरे। तब उसी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ही थी और ऊपर से पथराव शुरू हुआ। स्टेशन के ऊपर से पथराव शुरू हुआ और थोड़ी क्षणों के बाद ट्रेन वहाँ से चली। और ट्रेन चलने के बाद करीब 500 मीटर तक आगे ट्रेन चली होगी। अब एकदम ट्रेन रुकी और रुकने के बाद वहाँ से जैसे कि अहमदाबाद की ओर ट्रेन आ रही थी तो हमारे लेफ्ट साइड से करीब 1-2 हज़ार से ज़्यादा लोगों का पूरा झुंड ये ट्रेन की तरफ आ रहे थे। लगभग पत्थर मारो था 15-20 मिनिट तो खરું જ। हाँ, पत्थर मारो, पहले तो जोरदार पत्थर मारो करो, ऊपर धड़म 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 था। तो हम लोगों ने सब जितना कार्यकर्ता थे सब लोगों ने ट्रेन का विंडो खिड़की बंद किया। बंद करने के बाद उस पर पथराव और उसी के हाथ में कहीं लाठी थी, उसी के हाथ में कुहाड़ी थी और भी बहुत सारे था और बोतलें थी कांच की बोतलों में उन लोगों ने एसिड भरा होगा। तो एसिड से जैसे कि बोतल घा करते तो डब्बे के ऊपर भिटकाने के बाद वो नीचे आती तो अंदर जो था उसको भी गुंगरामा होने लगी। આ લોકોનો એરિયા હતો મુસલમાનનો એરિયા। ત્યાં આગળ મસ્જિદ પણ હતી બાજુમાં અને ત્યાં આગળ એ લોકોએ કાંકરો તૈયાર કરી અને ત્યાં આગળ જોરદાર પ્રહાર ચાલુ કર્યા। અમારા જે ડબ્બાની સામે બિલકુલ મેન્ટલનો જે ઢગલો હતો એ બિલકુલ લેવલ બારીને એની લેવલમાં અમે ઊભા રહીને પ્રહાર કરીએ એ રીતના હતું। તો એ પછી અમે લોકોએ ત્યાંથી ગોધરાથી જ ट्रेन चालू थे, दरवाजा बारे બધું બંધ कर દીધું હતું। मैं खुद S8 में था और हमारे साथ S8 में हम जो जितने कार्यकर्ता थे वो सब S8 में था। गाड़ी रुकी थी, उसी के बाद में चिल्लाने की जोर से आवाज़ आई। वो जो लोग थे उसको मनमानी के हिसाब से गंदी गालियाँ बोल रहे थे। हमारी बहनों बेटियाँ सुन नहीं सके ऐसी गंदी गालियाँ बोल रहे थे। हमारी बहनों बेटियाँ खुद अपने कानों पे हाथ रख के बैठी थी और वो दृश्य ऐसा था कि हम लोग कुछ बचेंगे नहीं बचेंगे उसी सब टेंशन में और उसी हिसाब से वो लोग पूरा पथराव और ये सब करने लगे थे और काट देंगे, मार देंगे, आप लोग कार सेवा करके आए, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बहुत गंदी गालियाँ, माँ बहन बेटी सुन नहीं सके ऐसी गंदी गालियाँ चल रही थी। લાકડી તો જેને જે હાથમાં આવ્યું એ બધું લઈને આવેલા અને પછી ભાઈ આપણે એમનું મસ્જિદ હતું ને તે મસ્જિદમાંથી એલાઉન્સ થતું હતું કે માર डालो, काट डालो, किसी को जिंदा नहीं जाने दो, लड़कियों को खींच लो, એવું બધું બોલતા હતા એ લોકો। आगे आवाज़ आई कि ट्रेन जलाई। तो जैसे कि दूसरी पटरी के साइड से हमने देखा तो आगे वाली 2 वाली बोगी थी S6, उसमें से आग जलना शुरू हुआ। ધુવાડો બહુ થઈ ગયો, ધુવાડો બહુ થઈ ગયો ને પછી બધા આમ બેભાન થઈ પડતા હતા। પછી આમ હું બારી બાજુ જતી રહી અને પછી મને પેલી બારી બેન્ડ મારી ને મારે કાર્યકર્તાઓએ પછી મને ખેંચી લીધી અને પછી તો વળકે બળતો હતો ડબ્બો। પછી તો એકદમ બળવા માંડ્યો, ભડકા થતા હતા, આખો સળગતો હતો। કેરોસીન બધું નાખ્યું, પેટ્રોલ ને એવું બધું અંદર નાખ્યું હતું ડબ્બામાં અને પછી કાકડા નાખ્યા એટલે એકદમ સળગ્યું નહીં પણ ધુવાડો બહુ થઈ ગયો અને પછી સળગ્યું બધું। એટલે અંદર બધા અમુક અમારી જોડે 11 જેવી બહેનો હતી ને તો એ તો બધું ધુવાડાથી અંદર ગુગળાઈ મરી ગઈ અંદર। અને મને થોડો ભાન હતું તોય મને આમ આંખો બંધ થતી હતી ને એવું થતું ને પછી બારી જોઈને મેં કીધું બધું જાય તો જાય, મેં કીધું બારી બાજુ જવા દે।
તે પછી હું બારી બાજુ ગઈ ને તો મારા કાર્યકર્તાઓ બારી બાજુ જ હતા. આ સાઈડ એ લોકોનું મોમેડિયનનું હતું બધા માણસો, અને આ સાઈડ અમારા કાર્યકર્તાઓ બધા ઉતર્યા હતા. તો પછી એ બધા પછી મને જોઈ ગયા ને કે બેન નથી છે કે એમ ભાનમાં છે. તો પછી એક ભાઈએ એમ દંડો માર્યો ને બારી ઉપર, તે પછી બેન વળી ગઈ. અને પછી આટલું થોડું થયું ને એટલે પછી મેં કે બેન માથું નાખી દો, પછી મને ખેંચી લીધી બહાર. Panchal Parivar, their parents, father, mother, and 2 elder sisters were burned alive. And only 4 sisters remained. The oldest one at that time was around 19 years of age, while other sisters were still. One Gayatri Panchal, who was also in the coach with their father, mother, and 2 elder sisters. Fortunately, she escaped. The persons somehow managed to open the door when there was too much of fire and the smoke. गाड़ी नीचे थी आती रही. ये X6 नो डबल चल रहा था ना, उसके नीचे से निकल के आई और बच्चों निकलने की जगह ही नहीं थी. कोशिश करे तो भी निकल नहीं सकते क्योंकि एक ही दरवाजा. खिड़कियां में तो सब खिड़की में से तो सलिया होता है, तो कैसे निकले? इतना ग्लास भी नहीं निकल सकता है. બધા વ્યવસ્થા થઈને પડેલા એટલે પછી કેવી રીતે નીકળી શકે? और जो दरवाजे के अंदर बेफान हो के दरवाजा का जो दरवाजा है उसके पीछे तो 3-4 आदमी गिर गए थे बेफान हो के, तो दरवाजा पूरा खोल भी नहीं सकता था. मेरे को लगा कैसे बचा. तो મને નીકળવા માટે એને બૂમ પાડી બાજુથી જે બધા હતા. કોના હાથમાં શું આવ્યું એ ખબર નહીં, પણ બારીના સળિયા ઉપર માર્યું. એક સળિયો તૂટી ગયો એક સાઈડથી, અને એમાંથી હું બાયપાસ થવા માટે નીકળ્યો કે ભાઈ હું નીકળું બચી જવા, કારણ કે મને ગુંગળામણ થવા માંડી હતી. તો મારાને હિસાબે આખો ગોટ અને બધે છાજલીઓ બાજલીઓ બધું સળગવા માંડ્યું હતું. હવે તે વખતે શિયાળાનો ટાઈમ હતો, સ્વેટર બેટર બધું પહેરેલું હતું, પગમાં મોજા બૂટ હતા, એના હિસાબે પગ બચી ગયા. અને આ જ્યાં નીકળવા માટે કુદરતી મને કહું, નહીં તો પહેલાં કોઈ પગ કાઢીને બહાર નીકળે. એની જગ્યાએ મને પહેલાં ભગવાને માતાજીએ બુદ્ધિ આપી કે તું પહેલાં માથું કાઢ. તો હું માથું કાઢીને બહાર નીકળવા ગયો. ના મારા પગ છે ઉપરની છાંડલી જે સળગતી હતી એ છાંડલી ઉપર ટચ થઈ ગયા અને પેન્ટ સળગવા માંડ્યો. ના મારા બંને પગે આ રીતે મારા બંને પગે લાગી ગયા. હું જે નીકળ્યો એ તરત પછી બીજા કાર્યકર્તાઓ પેન્ટ મારું ફાડી અને એ કરી નાખી, ચડ્ડી બનાવી દીધી પેન્ટની. અને એ રીતે હું ત્યાં આગળ બહાર નીકળ્યો. આવા બેસીને ત્યાં આગળ રેલિંગ ઉપર ઊભા બેઠા હતા અને પૂછતા હતા કે નીકળ્યા કે નહીં. તે પણ પેલા ભાઈએ કહું કે હા એ નીકળ્યા છે અને આવ. પછી અમે ત્યાં આગળ એ કર્યું અને ત્યાં પછી અમે ત્યાંથી ગોધરા સિવિલની અંદર એમ્બ્યુલન્સ તો આવી નથી. Actually, their plan was to burn the train entirely. In fact, luckily it so happened that the train was late, running late. Had the train been at Godhra as per the scheduled time, those persons would have been able to attack and see that the entire train is burned. Their target was to burn the entire train. उनकी क्या गलती थी is one line that I heard frequently from everybody, and they would break down and cry. The families of the deceased had only one question to ask, and that became the primary focus of this investigation. So we're about to enter Godhra right now, the word that has haunted not just political leaders in Gujarat, but the rest of the country as well, and something that's become a scar now for the nation for about 2 decades. Unfortunately, we were not able to convince the victims to come along, and we did not try too hard because obviously many of them started breaking down as soon as we even entertained the idea of taking them near the bogie that was burnt down initially, where it all began. Godhra stands divided. On one hand you have all Hindu homes, and on the other hand you have Muslim ghettos.
which have been mentioned in the places, in various news reports and everything before. And that's the reason you saw such high tensions back then, and eventually it led to what it led to. Right now we are traveling towards the Godhra railway station, where the S6 bogie, which was burnt down, has been preserved as an exhibit. This is what is left of the remnants of the S6 and the S7 coach. And I've been hearing about it for the last 2 to 3 days, speaking to the victims and their families and the survivors who've been there. But for the first time seeing it in detail, you start to imagine things about how it would have been and how things might have taken place back then. It's just a scene that cannot be described, I think. The pictures that have been painted in my head are now coming to life, because they've described what windows these survivors came out from. They've described what happened with the doors and those wires that have been tied to the doors. And you cannot help but imagine everything. Usually I've been to places, I mean, I'm young, but I'm quite strong when it comes to these things. But I think I'm starting to lose 1% of my composure. You see, Godhra is a communally very sensitive place. This was not the first time a communal incident of this nature took place. Between 1925 and 1992, 15 different communal incidents have taken place in Godhra. Godhra is populated by Ghanchi Muslims, and especially in 1948, when a violence broke out, Ghanchi Muslims actually burned down 800 homes of Hindus, and in retaliation, Hindus actually burned down 3,000 homes of the Muslims, and about 11,000 of them actually left गोधरा and went to Pakistan. 20 साल हो गए गोधरा कांड को। आप बेस्ट बेकरी का नाम सुनते हैं, आप बिल्किस बानो का नाम सुनते हैं, आप जकिया जाफरी का नाम सुनते हैं, आप एहसान जाफरी का नाम सुनते हैं। मुस्लिम जेनोसाइड की बात होती है, लेकिन उन 58 लोगों में जो जला दिए गए थे, उनमें से किसी एक सिंगल व्यक्ति का नाम मैंने गूगल किया तो कहीं मुझे नहीं मिला। किसी न्यूज़ पोर्टल पे नहीं था, किसी सरकारी वेबसाइट पे नहीं था, कि मुझे भी उसके बाद ही लगा कि भाई वो लोग कहाँ हैं। Bipin Thakkar is a very mysterious man. He actually helped me connect with a lot of these families in Gujarat. I made 6 different visits to Gujarat between December 2023 and March 2024. And every time I would go to Gujarat, it was customary for me to go and meet Bipin, have a tea with him and get some information from him. But every time I decided to ask, what is your story? Why are you involved in all this? And what role do you have to play in all this? He would not have anything to say. I mean, he would say that, right now I have to go look after some business. Why don't we talk after you're done? And finally, when I was done with the whole shoot, I asked Bipin, what is your story? And then he tells me that he also lost 2 people in his family. There was something mysterious about this man, and I was curious to find out more. I felt that he was hiding something from me. ये आपका सीक्रेट मिशन है, इसके लिए किसी को मुझे बताना नहीं है, समझ गए कि नहीं? अभी तक किसी को अपना इंटरव्यू ऐसा किया नहीं है। पर ये जानते हैं कि आपके साथ ये कौन? सारे जो आसपास के लोग वो तो जानते ही है ना, अपने पहले फोटो यहीं लगा हुआ था। अच्छा। जितने लोग इसमें गुजर गए वो सब। और आपके परिवार में भी कोई? मेरे परिवार से 2 लोग थे ना, मेरे ससुर और मेरे साले। अच्छा। उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। उस टाइम वो लोग मेरे दुकान पर बैठते थे। मैं बजरंग दल भर्ती अभियान किया तो कम से कम 10 दिन वहाँ पर बैठे थे। जब ये पहली जिस दिन खबर पड़ी, जब पता चला कि ऐसा हुआ, तब उसी दिन मैं पिताजी का पैसा भरने के लिए 4 धाम की यात्रा गया, जो किराया भरने के लिए यहाँ से बड़ौदा गया था। वहीं मेरे को सब पता चला। और उस दिन ऐसा हुआ कि यहाँ सब ऐसा हो गया कि भाई सब बंद है, गोधरा कोई जा नहीं सकता। फिर भी मैंने हिम्मत करके मेरे चाचा के साथ बाइक लेके मैं चला गया। 27 तारीख को ये हादसा हुआ तो ये जो ट्रेन के जो डिब्बे थे S6 और S7, ये दुर्घटना के बाद में वो दोनों डिब्बे वो साबरमती एक्सप्रेस से काट के अलग किए गए। उसके बाद में 11 बजे के आसपास
ट्रेन को वहाँ से चलाई और मणिनगर स्टेशन पर लाके हाँ करेक्ट। खड़ी किया। तो मणिनगर स्टेशन पर लेके आए तो हम लोग जो आदमियों को भेजे थे उसका पूरा हमारे पास लिस्ट था। तो हम लोग कितने वापस आए हैं उसका भी प्रेजेंट किया। आपको खबर पहले कब मिली? हमको सुबह 8 बजे ही पता चला। किसी ने फोन किया था? फोन आ गया था वीएचपी कार्यालय पे। अच्छा। भूपत दवे करके है, उस टाइम हमारे जिले के अध्यक्ष थे, वो ट्रेन के अंदर थे। अच्छा। हाँ, भूपत दवे और महेश शाह जिला मंत्री थे। अच्छा। उनका कार्यालय पे फोन आ गया हाँ, कि भाई ऐसा हुआ है स्टेशन पर। तो वहीं से हम सब कार्यकर्ताओं को पता चला कि भाई गोधरा में ऐसा हुआ है और कौन है कौन नहीं है उसका कुछ भी पता नहीं था। इनका तो मैं संबंधी हूँ, उनका लड़का हूँ, लेकिन ये पूरे जो है उसका कौन है? तब मेरे को ऐसा मन में ऐसा हुआ कि एक मेरे पिताजी मेरे संबंधी नहीं है, सारे मेरे ही है। और मैं पूरी रात उनके साथ में वहाँ से हम लोग गोधरा में से जो बॉडी लेके आए, ट्रक के अंदर बॉडी लाए थे हमने, सारी बॉडी यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं थी, 5 ट्रक के अंदर सारी बॉडी लाई गई थी यहाँ अहमदाबाद में। उसी बॉडी के साथ में ही मैं आया था। जिसने जो देखा, और मैंने तो पूरा 12 घंटा उसके साथ में बिताया। शाम को पहुंच गया था तो पूरा बॉडी के साथ में लेके आया घर तक। फिर 16 सिविल में सारी बॉडी ले गए थे, वहीं उतारी थी सारी बॉडी। फिर हम हमारी बॉडी लेके, सबसे पहले मेरी बॉडी में घर पे लेके आ गए क्योंकि पहचान हो गई थी मेरे पिताजी की। बाकी की किसी को बॉडी को किसी को दांत से पहचाना गया, किसी को कोई फोटो से पहचाना गया, किसी को कोई चूड़ी कंगन से पहचाना गया। बॉडी में किसी के बॉडी में कुछ भी नहीं बचा था। किसी को डीएनए रिपोर्ट से वो आप जब पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी हालत हुई थी। उसमें क्या कहो, पिताजी फिर क्या सीढ़ी में चढ़ रहे थे ना, तो उनके सर पे ऐसा नहीं कि खाली पेट्रोल वो लोग ने डाला था, ऑयल और पेट्रोल डाला, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी के सर पे एसिड पड़ा था। एसिड की वजह से पूरी खोपड़ी का हिस्सा निकल गया था। और वो मैंने यहाँ तो सारी बॉडी देखने के बाद अपने भी पिताजी की बॉडी खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। पर जब शमशान में मैंने बॉडी खोली ना, तो उनके जो दिमाग का हिस्सा होता है ना, मगज का, उसका मैंने बाहर इकट्ठा करके रखा था। ये माता जी भी देखो हमारे, वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन वो पिताजी की उसकी वजह से देखो ये मम्मी का दिमाग खराब हो गया था, सुसाइड करने चली गई थी मम्मी। वो विचार हो जाता है ना। आपने जो आपने पूछा ना कि भाई आपको कैसा महसूस होता है, तो क्या समझने वाले हर कोई नहीं समझ पाते। पर क्या ये मानो के माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, अपने अपने काम करते हैं, उनको अकेला तो छोड़ते नहीं है, लेकिन अकेलापन तो महसूस होगा ना, उनका तो जीवन साथी चला गया तो। The amount of propaganda and lies and unethical journalism that the media actually did around that time is preposterous. There were theories that a car sevak actually pulled a beard of a Muslim vendor at 7 in the morning, which is why the whole incident actually happened. There was one more theory which suggested that a car sevak actually got on top of the bogie and he flashed his private part to a Muslim woman who was standing nearby. There's one more theory which suggests that a Muslim girl was actually kidnapped by them. Now, obviously, all of this has been disproved by the Nanavati Commission. But then people who do not actually want to believe will also tell that the judiciary is also corrupt now. They simply want to believe their own version of the truth that they think were their victims in. And the people who have actually lost their lives, apparently they are the ones who are telling all the lies just to gain sympathy for themselves. And this is the amount of lies that has been fed to us. There was even a government commission which was in place when Lalu Prasad Yadav was the railway minister. The Banerjee Commission report, within just a few days, had arrived at conclusion that this entire thing happened because of a gas leak or some other form of accident, and this was not pre-planned or this was not instigated by a certain community which saw it from a communal lens.
These families have been demonized for way too long. They have been defamed. They have gone through all sorts of trial. They have gone through a media trial. They have gone through the judicial process for several years. And even after that, what are they living on? They're living on a few thousand rupees as compensation. Many men were lost, women were lost, children were burnt alive. And there is no acknowledgement that there was some wrong done on the part of a few people. Suppose, just to appease to your conscience, suppose consider all these theories as true. Suppose somebody pulled somebody's beard, a girl was kidnapped. Would you kill, torture, pour petrol and acid on somebody and kill innocents, women and children included, because of it? What would that make you? Is a question that one needs to ask themselves. आपके बेटी निकली थी यात्रा में, तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए आप। बस अच्छी थी, ठीक सी, घर से काम करती थी, घर में रहती थी, अक्खा दिन पूरा घर का काम संभाल लेती थी, वही थी। पढ़ाई उसके लिए 10 तक की है। फिर उसका पढ़ने में मगज नहीं लगा, तो उसने कोई और सोचा कि कुछ काम कर लूँगी, क्योंकि मैं काम से ही इतना बिजी थी, काम ही करती थी। मैं जहाँ गई हूँ नहीं वहाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पगार ही कम था उसी टाइम पे। मैं भाड़े पे किराए पे लिया मकान, वो जहाँ रहती थी वहाँ। उसके बाद में मैंने ख़रीदा 90,000 में मैंने मकान ख़रीदा, वो भी उधर उधर से पैसे लाके मैंने ख़रीदा। फिर उसको देने के लिए मैं खुद भी काम करने जाती थी। मेरा बेटा भी छोटा था, वो 15-17 साल का, वो क्या कर पाएगा। फिर मुझे पैसा चुकाने के लिए मैं काम करती थी, मेरा हस्बैंड जाता था। मेरे पिताजी अम्मी का मिल में सर्विस करते थे। वो रिटायर होने के बाद में उन्हें 25 साल विश्व हिंदू परिषद में संगठन में रह के पूर्णकालीन कार्यकर्ता थे, पूर्णकालीन। और दूसरे दिन सुबह में ऐसे मैसेज आया कि भाई ऐसा कुछ हो गया है वहाँ से। हमको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होगा कि लेकिन फिर 7 जन आता है एक हमारे वहाँ से 7 जन गए थे, लेकिन पापा ही नहीं है वापस आए हमारे वहाँ से, और बाकी 6 थे वो वापस आ गए थे। एक मारो बाबू હતો મેં જે ગુમાયો છે, અને જે લોકોએ બી પોતાના પરિવારના માણસો ગુમાયા છે એમનું દર્દ તો એ લોકો સમજી શકે બરાબર। મેં જે દર્દ અત્યાર સુધી વેઠ્યું છે એ અમારું મન જાણે છે। મારો એક બાબુ હતો, મેં ગુમાયો। वो सीन हमने देखा था कि भाई लाश का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे हम, इतनी पूरी तरह से जली हुई थी, ऐसे सिकुड़ी हुई थी। पता नहीं कैसे वो भगवान ने हिम्मत दी कि क्या थे कि हमने देखा है वो सब, वरना कोई नहीं देख पाता। ऐसी सीन था। परसों सुबह 4 बजे घर पे बीएचपी के कार्यकर्ता हमको बोलने को आए कि तुम्हारे पिताजी के ऐसा हो गया है। पूरा वो जान पहचान होने के बाद में उन लोगों ने आइडेंटिफाई करके हमको बोलने को आए भाई तुम्हारे पिताजी के ऐसा हो गया है, तो उनको अभी अपने सूला सिविल में उनकी बॉडी लेने के लिए जाना है। जब भी हमको पता चला, फिर हम और भाई और जो विपिन भाई थे ना कल जी, वो हम सब साथ में फिर जो परिवार के गए थे उनको सबको बोला कि इस तरह हुआ है, तो जिनका घर से गए तो फिर वो सब बॉडी लेने सूला सिविल में चले गए। सरकारे एमने जे बधी मदद મળવા જે વ્યક્તિ એ લોકોએ મદદ મળી છે, અને એના સહારે બી બાબાના સહારે બી અમારું જીવન અત્યારે ચાલી રહ્યા છે બરાબર છે। એ છતાં હજુ મનલાયક છીએ, અને સરકારની રેમ નજર અમારા ઉપર રહેતી રહે તો સારું છે। બીજું તો શું અપેક્ષાઓ રાખીએ બરાબર, અમે તો મનલાયક માણસો છીએ બરાબર છે। पेंशन भी कम मिलती थी उनको, क्योंकि पगार कम था तो उनके हिसाब से उनको पेंशन कम मिलती। Forget media reports, forget anything else. We actually bothered speaking to the victims themselves and their families. How could you actually deny something that they have seen with their own eyes? There are people who have crawled out of the windows trying to save their lives. There were people who burnt themselves entirely because of it. Their careers were lost. Their daughters went unmarried. Their sons were jobless because they were running after courts and compensation. You only care about what happens and then you give them a few lakhs, but you actually do not think about the psychological trauma that they actually go through for several years now.
And what did they all do it for? It was a simple belief that Ram Janmabhoomi belonged to Ram Lalla and he had to come back. And they were not advocating for violence against anybody. They just made their case in their own homeland, in a civilization that has existed for over 5,000 years. मैं जब भी कार सेवक फैमिली से मिली थी, उन्होंने सबने यही बात की थी कि अब मंदिर बन रहा है और अब जाकर हमको थोड़ी शांति हुई है। अब हमको जाकर ऐसा लग रहा है कि जो कुर्बानियाँ, जो सैक्रिफाइसेस हमारे घर वालों ने दी हैं, वो व्यर्थ नहीं गई। और ये सिर्फ 90 के गोलीकांड के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है। दरअसल ऐसी दो बहुत जघन्य घटनाएं इस पूरे मूवमेंट में हुई हैं। एक तो 90 का गोलीकांड, जिसमें 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह सरकार के आदेश पर वहाँ पुलिस ने कार सेवकों पर गोली चलाई, और दूसरा गोधरा कांड। यहाँ कुछ लोग जो सिर्फ कार सेवा देने आए थे अयोध्या में, वो जब वापस गए गुजरात, वहाँ पर गोधरा स्टेशन से ठीक पहले किस तरह की वो जलकर मरे हैं। इस बात की बहुत कॉन्शियसनेस वहाँ लोगों के अंदर है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ जो मैंने वहाँ देखी। मतलब मैं किताबों में पढ़ कर गई थी, पर वहाँ मुझे लोगों ने कंफर्म किया कि दरअसल आसपास के लोगों ने वहाँ पर नमाज कभी होने भी नहीं दी। ये मैंने बुक्स में भी पढ़ा था, ब्रिटिश एरा रिकॉर्ड्स में। वो लोग कंप्लेन करते थे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को, मस्जिद वाले, कि जब भी हम कोई नमाज़ पढ़ने जाते हैं आसपास के लोग हम पर पत्थर मारते हैं या हमको पिटाई कर देते हैं, हमको नमाज नहीं पढ़ने देते। और मैं कब की बात बता रही हूँ, 18th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की। तो यानी वहाँ के लोगों ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। वीएचपी का मूवमेंट हो सकता है कि बाहर कर सेवा, बाहर वाले लोगों को इन्वॉल्व करना, लेकिन ये भी बात सच है कि वहाँ के लोकल लोग भी वहाँ पर उसको नमाज नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया उसको। इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट मुझे ऐसा भी मिला था जिसमें ये लिखा हुआ था कि मस्जिद बनने के तुरंत बाद ही वो अबैंडन्ड हो गई थी, इसीलिए वहाँ पर एक चबूतरा बनाकर हिंदुओं ने वहाँ पर एक तरीके से प्रोविजनल टेम्पल सा छोटा सा बना भी लिया था। तो वो वहाँ पर हुआ है। जो मुझे समझ में आया वो यही आया कि वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों ने, तब तो वीएचपी भी नहीं थी ना, मैं कब की बात बता रही हूँ, मतलब 200-300 साल पहले, तब भी वहाँ पर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वहाँ पर मंदिर को तोड़ा गया और मस्जिद बनाई गई। 92 से पहले ही एक बुक लिखी गई थी, द डिस्प्यूटेड मॉस्क, सुशील श्रीवास्तव कोई हिस्टोरियन करके थे, उन्होंने लिखी थी। उसमें उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि कोई मंदिर नहीं है वहाँ पर। वो पूरी बुक लिखी इसलिए गई थी, वो पूरी बुक इसलिए लिखी गई थी कि जो भी हिंदुओं का पक्ष है इस वाले मामले में वो गलत है। उसके बाद मस्जिद गिरी और उसके बाद जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो भी हिंदुओं के पक्ष में आया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी हिंदुओं के पक्ष में आ गया। आज ये लोग कितना ही कहते रहे कि सब कुछ ही बिका हुआ है, सब कुछ ही सरकार की वजह से हो रहा है, हम इतने पेसिमिज्म के साथ नहीं चल सकते। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि शायद आप ही गलत थे। तो राम मंदिर बन रहा है, उसकी कोई खुशियों का अपार खुशियाँ है, और वो खुशियाँ हम बोलते हैं कि पुरखों ने कुछ पुण्य किया तो हमको यही जन्म मिला, जो राम मंदिर का दर्शन और राम मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा देखना मिला। ये हमारा सौभाग्य है। ये मंदिर बन रहा है तो अपने जो भाव है वो प्रकट कीजिए कि भाई हमारे परिवार से तो जो राम सेवक गए वो तो वापस नहीं आ पाएंगे, पर अभी राम मंदिर निर्माण हो रहा है। इतने सालों बाद, 492 साल के बाद में रामलला विराज रहे, उनका योग्य स्थान हम उनको दिला रहे, तो हमारे लिए गौरव की बात है। एक बात सही है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मौत दे ना तो ये मेरे पिताजी जैसे, जिसको दुनिया देखे। मंदिर बन रहा है ना, उसकी वजह से दिल में इतना सुकून मिल रहा है कि इनका बलिदान किसी का वेस्ट नहीं गया, किसी का भी बलिदान वेस्ट नहीं गया। हर किसी की इच्छा थी राम मंदिर बने, हर किसी की इच्छा होती है, किसकी इच्छा नहीं थी? हाँ, वो बस एक ही रिक्वेस्ट है ये मोदी जी से कि भाई आप वैसे तो सुना है कि करने वाले हैं, लेकिन जो ये अयोध्या में जो शहीद हुए हैं, जो गोधरा कांड में, उनके नाम राम मंदिर के कहीं एक पिलर पे भले कोने में भी लगा देगा, तो हमको ये लगेगा कि भाई हमारे पिताजी का बलिदान सालों तक याद रहेगा कि नहीं भाई ये राम मंदिर के सेवा में गए थे और राम मंदिर की ईंट पे उसका नाम लिखा गया।
उतना बस उतनी सरकार से अपना निवेदन है कि उतना कर सको तो करना, बाकी अपने कोई इसमें ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। बस ये एक इच्छा है कि कहीं भी एक अयोध्या की ज़मीन पे पिताजी का नाम लिखा जाए। बस पूरे, ऐसा नहीं कि पिताजी का, पूरे जितने शहीद हुए हैं, इसके पहले जो बाबरी मस्जिद के टाइम में भी शहीद हुए, तोड़ी गई तब कल्याण सिंह की सरकार में, कि गोधराकांड में हुए, सारे शहीदों का नाम लिखा जाना चाहिए कि भाई ये राम मंदिर के लिए ये लोग ने बलिदान दिया है। बस वही एक इच्छा और एक ही प्रार्थना है सरकार से कि इतना कर सको तो करे। वो आपके माध्यम से हम पहुंचा रहे।